student. How are you? I hope you are very well. Welcome to our YouTube channel Gyanmujri Modern School. Today, Standard 6, Subject English, Chapter number 1, Section 3, My Kingdom. In the previous video, we just complete the exercise in your textbook. Then further moving, My Kingdom. This is a poem. So first of all, write down a meaningful words, meaning. First one, where, in bracket here, a small pool, a small pool. Second one, there here, a small valley, with trees growing in or around it, around it. Third one, heather, a low wild plant with small purple pink or white flowers. Pink or white flowers. Fourth one, God say, a bush with thin leaves, with sharp points, and small yellow flowers. Sharp points and small yellow flowers. Here is the meaning of hard words. The first one, where. Let's discuss what is the meaning of well. A small pool, मतलब कि छोटा सा तालाब. There, a small valley with trees growing in or around it. मतलब कि there क्या कहते हैं? A small valley, मतलब कि छोटा सा एक ऐसा विस्तार जहाँ पे trees growing हो रहे हैं, मतलब कि काफी सारे पेड़ों मतलब कि पेड़ उगे हुए हैं अराउंड इट, मतलब कि आसपास पे काफी सारे पेड़ जो है वो उगे हुए हैं. Then heather, a low wild plant with small purple, pink or white flowers. heather का मीनिंग है a low wild plant, मतलब कि काफी छोटे जो है वो wild plant है with small purple. वो कौन से है? पिंक और व्हाइट फ्लावर्स के बारे में बात की है. हेदर ग्रोस, तो ग्रोस कौन है? अब उसका मीनिंग क्या है? A bush with thin leaves with sharp points and small yellow flowers. मतलब कि जो a bush with मतलब कि काफी सारे फूलों को मिला के जो एक जगह बनती है उसे क्या कहते हैं? बश, मतलब कि डाली, मतलब कि एक बश
विथ थिक लीव्स, मतलब कि उसके जो लीव्स है वो काफी थिन है, विथ शार्प पॉइंट्स, मतलब कि नुकीले उसके उसके लीव्स है, जिससे आपको छूते ही आपको चोट लग सकती है। विथ लीव्स विथ शार्प पॉइंट्स एंड स्मॉल येलो flowers. Okay, first of all, write down in your book meaning, then further moving. Okay, next one. Fifth one, summer bloom. Summer bloom. The meaning is summer bloom here. In this poem, this meaning is with the flowers fully open. With the flowers, with the flowers fully open. Fully open. मतलब कि ये जो फ्लावर्स यहाँ पे समर ब्लूम का जो मीनिंग है वो क्या रहेगा, विद द फ्लावर्स फुल्ली ओपन, मतलब कि काफी खिले हुए, विद द फ्लावर्स फुल्ली ओपन मतलब कि खिले हुए फ्लावर्स के बारे में बात की है। 6 नंबर, cavern. Cavern means a cave. A cave, especially a large one. Especially a large one. A large one. मतलब कि ये इस पर्टिकुलर चीज के बारे में कह रहा है कि स्पेशली अ लार्ज वन, मतलब कि काफी बड़ा वाला। A cavern means a cave, especially a large one. 7. Minnow. Minnow means a very small freshwater fish. A very small freshwater fish. Freshwater fish. Minnow means a very small freshwater fish. मतलब कि a very small freshwater, you can see that fish directly because the water is fresh water. Fresh water. आपने कहीं पे आप बीच पे गए होंगे तो आपको मालूम होगा कि इंडिया में, मतलब कि हम गुजरात में बात करें तो बीच जो है वो काफी अच्छा नहीं है, मतलब कि वो आप फिश को इजीली देख नहीं पाते। इन द केस, मतलब कि आप अगर दौलतेश्वर जाओगे तो आपको फिश काफ़ी सारी मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे 50% जो है वो हमारा फ्रेश वाटर है, मतलब कि अगर गंदगी ना हो, मतलब कि वहाँ पे स्वच्छता हो तो आप इजीली फिश देख सकते हैं। सो हियर minnow means a very small fresh water fish. Even fall यानी इवनिंग, इवन फॉल यानी इवनिंग के बारे में बात की गई है। इवन फॉल यानी इवनिंग। नेक्स्ट वन, डिम्पल्ड वाटर बेड।
डिम्पल्ड वाटर वेल, यानी a small hollow with water, a small hollow with water, with water, a small hollow with water, पानी के साथ छोटा जो होलो है उसके बारे में बात की है। 10.1 नर्स, नर्स यानी here मतलब कि in this poem the meaning is a woman whose job was to take care of the little boy. A woman whose job was to take care of the little boy in his own home. Here nurse मतलब कि आपको नर्स के बारे में पता होगा। इन दी हॉस्पिटल यू कैन सी दैट मतलब कि आपने अस्पताल में देखा ही होगा नर्स का काम जो है वो क्या होता है। तो इन दिस पोएम हियर अ वुमन whose job was to take care of the little boy in his own home, मतलब कि उसके खुद के घर में उसकी मतलब कि वो जो पर्सन a woman whose job was to take care of this little boy, मतलब कि एक छोटा लड़के के बारे में पर्सनली टेक केयर करे वो क्या कहलाते हैं? नर्स। मतलब कि a woman whose job was to take of the little boy in his own home personally. 11 great here in this poem the meaning is here very large मतलब कि ग्रेट का मीनिंग जो यहाँ पे है वो क्या है? वेरी लार्ज यहाँ पे मीनिंग दिया है। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन इन योर बुक, देन फर्दर मूविंग स्टार्ट दिस पोएम। Have you done this? Then start this poem. Here the poem story is मतलब कि यहाँ पे एक छोटा सा लड़का है उसके बारे में ये रियल वर्ल्ड अपीयर टू अ लिटिल बॉय मतलब कि एक रियल दुनिया है वो ये लड़का कैसे देखता है उसके बारे में पोयम है। देन फर्स्ट लाइन इज डाउन बाय शाइनिंग वाटर वेल, डाउन बाय शाइनिंग वाटर वेल मतलब कि ये जो शाइनिंग वाटर वेल का मीनिंग हमने यहाँ पे क्या लिया है? स्मॉल पूल मतलब कि ये जो आप यू कैन सी दैट इजीली हियर द डाउन बाय अ शाइनिंग वाटर वेल मतलब कि ये जो नदी है उसका जो फ्लो है वो कैसे बहता है उसके बारे में बात की है। और वेल का मतलब यहाँ पे क्या है? पॉन्ड मतलब कि छोटा सा तालाब है। लाइक अ गर्ल मेशर आपने देखा होगा छोटा सा पॉन्ड है, वैसे ही डाउन बाय अ शाइनिंग वाटर वेल मतलब कि आपने देखा होगा कि जब सूर्य की जो सन की जो रेस होती है मतलब कि जो किरणें होती है वो पानी पे ऐसे छूते ही आपको जो पानी है वो कैसा लगेगा? शाइनिंग मतलब कि ऐसा शाइनिंग आपको चमकता हुआ दिखाई देगा। वैसे ही ये जो लड़का है वो देखता है डाउन बाय अ शाइनिंग वाटर वेल मतलब ये छोटा सा पाउंड है जिसमें
ये जो वाटर है वो उसे कैसे लग रहा है, शाइनी। आई फाउंड अ वेरी लिटल डेल, मतलब कि ये जो ऑथर है, ये जो हमारा लड़का है, आई फाउंड अ वेरी लिटल डेल, मतलब कि उसने क्या ढूंढ निकाला। आई फाउंड अ वेरी लिटल डेल, मतलब कि एक छोटी सी वैली। डेल यानी क्या है, अ स्मॉल वैली विथ ट्रीज ग्राउंडिंग इन और अराउंड इन, मतलब कि एक छोटी सी, हम सिंपल भाषा में उसे खीण कह सकते हैं। आपने देखा होगा कि इन दी पिक्चर आपने देखा होगा कि जिसके अराउंड काफी सारे जो है वो क्या रहते हैं, छोटे और बड़े ट्रीज उगे होते हैं, मतलब कि ग्रोइंग हो रहा है इन और अराउंड इन, मतलब कि उसके आसपास काफी सारे फ्लावर्स एंड प्लांट्स जो है वो है, मतलब कि नजदीक जो है वो एक लिटिल वैली उसे दिख रहा। वैली यानी क्या कहते हैं, डेल यानी अ स्मॉल वैली विथ ट्रीज ग्रोइंग इन और अराउंड इट, नो हायर देन माय हेड, मतलब कि उसकी जो साइज है वो उससे बड़ी नहीं है, मतलब कि छोटे छोटे प्लांट है। द हेदर एंड द ग्रोस अबाउट इन समर ब्लू वेर कमिंग आउट सम येलो एंड सम रेड, मतलब कि द हेदर यानी अ लो वाइल्ड प्लांट विथ स्मॉल पर्पल पिंक और वाइट फ्लावर्स, मतलब कि उसके नजदीक जो है वो वाइल्ड प्लांट है विथ स्मॉल पर्पल, मतलब कि छोटे से फ्लावर्स है वो किस रंग के, मतलब कि वाइट और पिंक कलर के उसके नजदीक जो है वो क्या है, फ्लावर्स है। द वेदर पिंक और वाइट फ्लावर्स एंड ग्रोस अ bush with thin leaves with sharp point and small yellow flowers, मतलब कि ब्रूस का मीनिंग क्या है, तो bush with thin leaves, मतलब कि काफी सारा जो है वो एक एरिया में bush यानी उसे हम क्या कहते हैं, तो झाड़ी, एक झाड़ी मतलब कि एक काफी सारा झुंड विथ फ्लावर्स, अ bush विथ थिन लीव्स, मतलब कि छोटे छोटे लीव्स यानी उसके पत्ते, विथ शार्प पॉइंट्स, मतलब कि आपने देखे होंगे कि जिस फ्लावर्स की साइज, मतलब कि सम शेप लाइक दिस शार्प पॉइंट्स विथ शार्प पॉइंट्स एंड स्मॉल येलो फ्लावर्स, मतलब कि उसके नुकीले कांटे भी होते हैं और क्या होते हैं, तो येलो फ्लावर्स भी होते हैं, मतलब कि लो पिंक और white flowers with sharp point and small yellow flowers above in summer bloom, in summer means यानी with the flowers fully open, मतलब कि अगर हम इस लाइन का पूरा कन्वर्सेशन करें तो इस तरह से होता है कि पिंक और वाइट फ्लावर्स है और a bush with thin leaves with sharp points and small yellow flowers अबाउट समर ब्लूम्स यानी विद द फ्लावर्स फुल्ली ओपन, मतलब कि ये जो ऑथर हमें कहना चाहते हैं कि फुल्ली नेचुरल पिक्चर्स है, मतलब कि यहाँ पे स्ट्रीम्स है यानी एक छोटी सा पाउंड है वहाँ पे, इन द वाटर फ्लो मतलब कि शाइनिंग वाटर है, मतलब कि चमक रहा है पानी, इसके नज़दीक काफ़ी सारे फ्लावर्स है इन और अराउंड इट, मतलब कि उसके अंदर भी फ्लावर्स है, पॉन्ड के अंदर भी और उसके नज़दीक भी काफ़ी सारे पाम, मतलब कि वो ट्रीज और फ्लावर्स है। और उसमें से ये भी कहना चाहते हैं कि ऑथर ये कह रहे हैं कि वहाँ पे पिंक और वाइट फ्लावर्स भी है और वहाँ पे कुछ नुकीले कांटे वाले येलो फ्लावर्स भी है और वो काफ़ी सारे, मतलब कि वो विथ द फ्लावर्स फुल्ली ओपन, मतलब कि वो खिल चुके, मतलब कि जो फ्लावर्स होते हैं वो काफ़ी खिल चुके हैं। इन समर ब्लूम वेर कमिंग आउट सम येलो एंड सम रेड, मतलब कि वहाँ पे सम फ्लावर्स या येलो और सम फ्लावर्स आर रेड। आई कॉल द लिटल पूल अ सी, मतलब कि ऑथर जो है वो क्या कहते हैं, लिटल पूल, मतलब कि दरिया का एक छोटा सा पूल कह रहे हैं। द लिटल हिल्स वेर बिग टू मी, द लिटल हिल्स वेर बिग टू मी, मतलब कि ये जो छोटी हिल्स है वो उसे काफ़ी बड़ी लग रही है उसके लिए। द लिटल हिल्स वेर बिग टू मी फ्रॉम आई एम वेरी स्मॉल, मतलब कि यहाँ पे मैं काफ़ी छोटा हूँ। और जो वैली की बात हो रही थी, जो उसकी साइज थी, वहाँ पे वो ऑथर के हेड तक भी पहुँच नहीं सकती थी और यहाँ पे
ये जो पूल है वो उससे भी काफी बड़ा है, मतलब कि फ्रॉम आई एम हियर स्मॉल, आई मेड अ बोट, आई मेड अ टाउन, आई सर्च द ट्रेंड्स अप एंड डाउन एंड द नेम दैट वन एंड ऑल। मतलब कि जो ये ऑथर है वो क्या बनाना चाहता है, बोट, आई मेड अ बोट, आई मेड अ टाउन, मतलब कि यहाँ पे मैं टाउन बनाऊंगा, आई सर्च द क्रेंस, क्रेंस यानी स्पेशली अ लार्ज वन, लार्ज वन अप एंड डाउन, मतलब कि ऊपर भी और नीचे भी, एंड नेम दैट वन एंड ऑल, मतलब कि उसको सभी को मैं नाम दूंगा, एंड ऑल अबाउट वाज माइन, मतलब कि वो सभी क्या हो गए, तो कि वो मेरे हो गए। मतलब कि आप देख सकते हैं कि बोट है, शिप है, मतलब कि बोट, फिशेस, बर्ड्स एंड वो सब जो है वो, मतलब कि ये ऑथर है वो यहाँ का, मतलब कि ये जो पोएटर है हमारा, ये लड़का है वो अपने आप को राजा समझता है। मतलब कि आई मेड अ बोट, मतलब कि वो बोट बनाएगा, टाउन भी बनाएगा, और स्पेशली लार्ज वन अप विथ डाउन एंड नेम दैट वन एंड ऑल, मतलब सभी के वो नाम रखेगा, एंड ऑल वाज माइन, मतलब कि वो सब मेरे हो गए। आई सेड द लिटल स्पैरोज ओवरहेड, द लिटल मिनोस टू, मतलब कि ये सारे वेरी स्मॉल वाटर वो फ्रेश वाटर फिश, मतलब कि वो सब किसके होंगे, तो कि ऑथर के होंगे। अ लिटल स्पैरोज ओवरहेड, मतलब कि आप देख सकते हैं कि स्पैरो चकलिया है वो, a little sparrows overhead the little minnows too, मतलब कि a very small fresh water fish, मतलब कि वहाँ पे फिशिंग के लिए भी जो है वो स्पेस प्रोवाइड की जाएगी। This was the world and I was king, मतलब कि ये जो दुनिया है, मतलब कि ये जो चित्र है उसका मैं राजा बनूंगा, मतलब कि ये जो लड़का है वो अपने आप को राजा समझता है। I was king, for me this beast came by to sing, for me the sailors flew, मतलब कि this was the world, मतलब कि ये पूरी दुनिया है और मैं उसका राजा हूँ। मेरे लिए for me bees came to by sing, मतलब कि ये जो मधुमक्खियाँ होती है bees कहते हैं, वो मेरे लिए गाना गाएगी, मतलब कि ऑथर के लिए गाना गाएगी। for me sailors flew, मतलब कि ये राजा के लिए उड़ेगी भी और गाना भी गाएगी। I played there were no deeper seas, मतलब कि ये काफी ऊंडा नहीं है, मतलब कि गहराई में नहीं है। Nor any wider plains than this, मतलब कि इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। No other kings than me, और यहाँ के मेरे अलावा दूसरा कोई राजा भी इसका नहीं होगा। And at least I heard my mother call out from the house at evenfall, मतलब कि जब भी ये evenfall का मतलब क्या है, इवनिंग, जब भी इवनिंग होगी तब मेरे क्या कहते हैं, at least I heard my mother call, मतलब कि जब भी मुझे अपनी मम्मी पुकारेगी तब अपने घर से बाहर आकर के सांझ को, मतलब कि शाम को बाहर आते यहाँ आ जाऊंगा। टू कॉल मी आउट टू टी, मतलब कि चाय कैसे बनती है। एंड आई मस्ट राइज एंड लीव माई डेल, मतलब कि यहाँ से एंड आई मस्ट राइज मतलब कि उगना, एंड लीव माई डेल मतलब कि वैली, डेल का मतलब हमने यहाँ पे क्या लिया था, अ स्मॉल वैली, मतलब कि छोटा सा एक वैली, एंड लीव माई डिम्पल वाटर वेल, और वेल का मतलब हमने यहाँ पे क्या लिया था, तो छोटा सा पाउंड है। लीव माई डिम्पल वाटर वेल मतलब कि एक छोटा सा नदी, पाउंड, एंड लीव माई हेदर ब्लूम्स मतलब कि यहाँ एक छोटा सा ये जो नेचुरल का जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो, एलास एंड एज माई होम आई नियर मतलब कि उसके घर के ऑथर के घर के नजदीक है। हाउ वेरी डिड माई नर्स अपीयर मतलब कि यहाँ पे नर्स का मीनिंग हमने देखा था कि अ वुमन whose job was to take care of the little boy in his own home मतलब कि खुद के घर में एक केयर टेकर के बारे में बात की है। How great and cool the rooms, how great मतलब कि यहाँ पे काफी लार्ज एंड कूल रूम्स मतलब कि ठंडा रूम होगा। In the
स्टोरी मतलब कि ये जो पोयम है वो क्या कहना चाहते हैं, एक छोटा सा लड़का है, उसको एक पॉन्ड दिखता है, मतलब कि एक छोटा सा तालाब दिखता है, उसमें वो क्या ढूंढता है, एक छोटी सी वैली है, मतलब कि एक खीण है, हम इसको हम क्या कह सकते हैं, एक छोटा सा खीण है, वहाँ पे उसको कई सारे रंग बेरंगी फ्लावर्स दिखते हैं। फिर वो सोचता है कि मैं उसका यहाँ पे राजा हूँ, यहाँ पे मेरे कोई कंपटीशन नहीं होगा, मतलब कि वो वहाँ पे फ्लावर्स देखता है, सम आर पिंक सम आर येलो, एंड उसमें वो नुकीले कांटे भी वो देखता है और सोचता है कि मैं यहाँ पे बोट बनाऊंगा, फिर बोट बनाऊंगा, टाउन भी बनाऊंगा और फ्रेश वाटर फिश भी यहाँ पे होंगे जिससे वो फिशिंग भी कर सके, और उसको बीज यानी जो मधुमक्खियाँ है उसको वो ऑर्डर देगा, जिसके राजा के लिए क्या क्या मतलब कि क्या करेंगे वो बीज उसके लिए गाना गाएंगे, और फिर वो यहाँ से जाना भी नहीं चाहता, जब उसकी मम्मी उसको पुकारे तब शाम को वो जाना नहीं चाहता, और वो पर्सनली मतलब कि नर्स जो है वो उसका पर्सनली टेक केयर करती है, मतलब कि आपने देखा होगा केयर टेकर, यानी a woman whose job was to take care of the little boy in his own home। और हाउ ग्रेट मतलब कि वो चाहता है कि वेरी लार्ज एंड कूल रूम्स, मतलब कि काफी बड़ा और ठंडा रूम हो सके। सो हियर स्टूडेंट अवर सेक्शन नंबर 3 poem is complete। Then so here our poem is complete। If any query you ask me to WhatsApp group, we can solve this। What is your homework? मतलब कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो स्टोरी है वो एक छोटे बच्चे की है जो रियल वर्ल्ड से और वो इमेजिनेशन के बारे में सोच रहा है, जिसको एक पिक्चर को देख के अपनी स्टोरी बनाता है। हियर होमवर्क इज मीनिंग write in your English book and read it। आपको जो हमने मीनिंग यहाँ पे इस पोयम के लिखा है वो आपको आपकी इंग्लिश बुक में वो लिखना है और आपको रीड भी करना है। ओके स्टूडेंट, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।